गुड। स्कूल तो कॉलेजेस तो अब इंशाल्लाह आपके खुलने वाले हैं करीब, मोस्ट प्रॉब्ली ईद के बाद। और उसके बाद बच्चों आपके धड़ाधड़ सेशन एग्जाम्स होंगे। तो जी, तो इंशाल्लाह पढ़ाई शुरू कर दो आप लोग जी। ईद के बाद इंशाल्लाह खुल जाएंगे आपके कॉलेजेस। ऑल राइट, सो डॉक्टर जावेद शफेज आपके साथ VA-VQ रेशो डिस्कस कर रहे थे यस्टरडे। ही वाज अनेबल टू फिनिश इट, तो मैं अभी आपको खत्म करा देती हूँ ये। फिजियोलॉजिकल शंट आपने कर लिया था, देन ही वाज अबाउट टू डिस्कस फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस। ठीक है, सो फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस क्या होती है आपने पहले ही पढ़ी थी कि एनाटॉमिकल डेड स्पेस वो एरिया है जैसे यहाँ पे एयर इज एंटरिंग, वेंटिलेशन हो रही है, बट दैट पार्ट इज नॉट टेकिंग पार्ट इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, लाइक आपकी नोज है, आपकी ट्रैकिया है, these parts जो हैं ये they are not taking part in there is no exchange of gases taking place over there, so this is called, it was called anatomical dead space। ठीक है, so physiological dead space क्या होती है in relationship to when we talk about VAQ। तो physiological dead space में VAQ रेशो जो है that is greater than normal। greater than normal का मतलब ये है कि ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है दैट इज मोर एज कंपेयर टू द डिनोमिनेटर। ठीक है, तो न्यूमरेटर जो है वो वेंटिलेशन है। इसका मतलब है कि वेंटिलेशन जो है हो रही है लेकिन फ्लो ऑफ ब्लड जो है वो कम है। ठीक है, वेंटिलेशन हो रही है मगर द ब्लड फ्लो इज लेस। ठीक है, सो VAQ इज ग्रेटर देन नॉर्मल। इसका मतलब ये होगा कि देयर इज वेंटिलेशन in the alveoli but the alveolar blood flow is low, right? अच्छा, so इसका मतलब है कि there is far more oxygen available in the alveoli than can be transported away from the alveoli by the flowing blood। यानी कि जो blood flow कर रहा है वहाँ पे the blood that is less and so more oxygen is available there to be carried away by that flowing blood, right? So this means the ventilation of these alveoli is wasted, right? Because the alveoli, they are ventilated, but the flow of the blood is less, so exchange of gases is not taking place, so the ventilation is considered wasted, right? The ventilation of the, so there are two type of the ventilations which are wasted. Number one, ventilation of the anatomical dead space areas of the respiratory passages। ठीक है, जो anatomical dead space areas हैं like your nose या like your larynx and like your upper bronchi, bronchioles, the part which are the parts which are not taking place in the exchange of gases, they are normal anatomical spaces, and that space is called anatomical dead space because there is no gas exchanges occurring over there. So and then there are alveoli which are working but the blood flow is low over there, so those alveoli, they are also considered, that space is also considered a dead space. So when you combine both these ventilations dead spaces, they make a total physiological dead space। यानी कि dead space वो dead space जो कि anatomical area की भी जो dead space है और वो जो alveoli which are supposed to take part in the gas exchange areas, यानी वो waste हो गए हैं, वो damage हो गए हैं, तो sorry the blood flow is low over there but the ventilation हो रही है, तो इन दोनों को मिला के हम इसको कहेंगे physiological dead space। यानी कि the alveoli which are ventilated but the blood flow is less, एक वो एक space और दूसरे anatomical dead space, दोनों को मिला के हम इसको कहेंगे physiological dead space। ठीक है, when the physiological dead space is great, much of the work of ventilation is wasted effort। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि जो आप सांस ले रहे हैं, जो वेंटिलेट कर रहे हैं आप अपने लंग्स को, उसमें आपकी डेड स्पेस की वजह से प्रॉपर ऑक्सीजन आपके लंग्स को आपके ब्लड में नहीं एंटर हो रही बिकॉज ब्लड फ्लो कम है। ठीक है, और तो फिर आप और ज्यादा सांस लेंगे। अब सांस वेंटिलेशन का वर्क तो बढ़ रहा है लेकिन गैस एक्सचेंज नहीं हो रही बिकॉज लेस अमाउंट ऑफ ब्लड। ठीक है, सो वर्क ऑफ वेंटिलेशन इज wasted because so much of the ventilating air never enters the blood। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये जो है बोर्स इक्वेशन है, इससे आप फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस फाइंड आउट कर सकते हैं।
This is physiological dead space over tidal volume is equal to partial pressure of carbon dioxide in the arterial blood minus the average partial pressure of carbon dioxide in the expired air, ठीक है, over partial pressure of carbon dioxide in the blood, ठीक है. अच्छा, अब एबनॉर्मलिटीज ऑफ वेंटिलेशन परफ्यूजनेशन, पहले हम नॉर्मल लंग्स की बात कर लेते हैं. एबनॉर्मलिटीज नॉर्मल लंग में वेंटिलेशन परफ्यूजनेशन कैसे डिफरेंट होती है, ठीक है. इन अ नॉर्मल पर्सन हु इज सिटिंग अपराइट, ठीक है, अ पर्सन हु इज सिटिंग अपराइट, उसमें क्या हो रहा है कि उसका पल्मोनरी कैपिलरी ब्लड फ्लो जो है इज मोर इन द लोअर पार्ट ऑफ द लंग्स ड्यू टू ग्रेविटी. नीचे जो है, जो पूरा अगर आप लंग देखो ना, तो नीचे वाला जो पार्ट है लंग का ना, वो वहां पे ब्लड फ्लो ज्यादा है, ठीक है. और जो ऊपर वाला लोब है लंग का, उसमें वेंटिलेशन ज्यादा हो रही है, ठीक है. सो टॉप ऑफ द लंग के ऊपर VOQ इज मोर, क्योंकि ऊपर वेंटिलेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू द फ्लो ऑफ ब्लड, ठीक है. तो ऊपर आपकी फिजियोलॉजिकल अपर लंग के पार्ट में ना फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस बनेगी, ठीक है. दूसरे बॉटम ऑफ लंग में क्या है, बॉटम ऑफ द लंग में ब्लड फ्लो ज्यादा है ड्यू टू ग्रेविटी बट वेंटिलेशन इज लो. तो वहां पे VAQ रेशो जो होगी लो होगी, और जो हम नीचे वाले लंग को हम कह सकते हैं कि वहां पे फिजियोलॉजिकल शंट एग्जिस्ट करता है, यानी कि ऊपर वाले जो लंग्स है वहां पे वेंटिलेशन ज्यादा है, ब्लड फ्लो कम है, तो डेड स्पेस ज्यादा होगी. और नीचे वाले पोर्शन ऑफ द लंग में क्योंकि ब्लड फ्लो ज्यादा है और एयर कम है, तो हम कहेंगे वहां पे फिजियोलॉजिकल शंट बन रहा है नॉर्मली, ठीक है. अच्छा, in both extreme cases, inabilities of ventilation and perfusion decreases slightly the lungs' effectiveness for exchanging of oxygen and carbon dioxide. However, during exercise, blood flow to the upper part of the lung increases markedly, so far less physiological dead space occur, and the effectiveness of gas exchange now approaches optimum. ठीक है. अब देखो इसका मतलब है नॉर्मली ऊपर डेड स्पेस है आपके लंग में, नीचे फिजियोलॉजिकल शंट बन रहा है, दैट इज नॉट गुड. लेकिन जितना है नॉर्मल सिटिंग पोजिशन में, that is a standing position, that is sufficient whatever exchange of gases is taking place. लेकिन आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो आपको पता है कि फिजियोलॉजिकल डेथ्स में आपकी कैपिलरीज ओपन अप हो जाती हैं, और जो ब्लड फ्लो ऊपर वाले लंग में भी ज्यादा हो जाता है, और द इफेक्टिवनेस ऑफ द गैस एक्सचेंज अप्रोचेस ऑप्टिमम. अच्छा, राइट, एबनॉर्मलिटीज सब मेरे ख्याल में डिलीट हो गई मेरे से. अच्छा, चलिए मैं आपको ज़बानी बता देती हूँ कि एबनॉर्मल कंडीशन जैसे एम्फाइजीमा है, ठीक है. तो एम्फाइजीमा में क्या होता है कि उसमें ड्यू टू एक्सेसिव स्मोकिंग से या रिपीटेड चेस्ट इन्फेक्शन से आपके लंग के जो एल्वुलाई हैं वो डैमेज हो जाते हैं, और कहीं की ब्लड कैपिलरीज डैमेज हो जाती है, ठीक है. जहाँ आपके लंग के एल्वुलाई डैमेज हो जाएंगे वहाँ पे वेंटिलेशन कम होगी, ठीक है. तो वेंटिलेशन कम है लेकिन ब्लड सप्लाई सही है, तो आपका वहां पे फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस बनेगी. और जहाँ पे ब्लड वेसल्स डैमेज हो गई हैं वहां पे क्या ब्लड फ्लो कम है लेकिन वेंटिलेशन हो रही है, तो वहां पे आपका फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस बनेगी, ठीक है. तो यानी कि एम्फाइजीमा के पेशेंट में कहीं पे डेड स्पेस बन रही है, कहीं पे फिजियोलॉजिकल शंट्स बन रहे हैं, और दोनों जो है वो मिला के आपके लंग की वर्किंग कैपेबिलिटी को रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है. So if the alveoli are not working, तो शंट बन रहा है, और if the alveoli are working and the blood is not there, तो फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस बनेगी, ठीक है. तो एम्फाइजीमा में ये दोनों कहानियां चल रही होती हैं. ये आप जब डिटेल करोगे डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, तो आप यू विल अंडरस्टैंड कि उसमें भी बताते हैं हम कि VA-VQ रेशियो को क्या हो जाता है. तो एम्फाइजीमा में फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस और फिजियोलॉजिकल शंट्स जो हैं वो दोनों प्रेजेंट होते हैं, ठीक है. कहीं पे वेंटिलेशन नहीं हो रही होती है और किसी पार्ट में ब्लड फ्लो कम होता है. अच्छा, अब हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड एंड टिश्यू फ्लूइड्स. अब देखो आपने जब सांस लिया है, ठीक है, जब आप सांस लेते हो तो क्या होता है कि आप यू इनहेल, वेंटिलेट कर रहे हो ना, तो यू इनहेल करोगे तो गैस जो है वो आपकी एयर है वो इट विल एंटर योर एल्वेलाई, ठीक है. एल्वेलाई से दैट एयर विल pass into the diffuse into the capillaries. Alveoli से
एल्वुलाई के साथ जो ब्लड वेसल्स पड़ी हैं, द एयर विल डिफ्यूज इनटू द कैपिलरीज। ठीक है, डिफ्यूजन आपने पढ़ ली। ठीक है, कि डिफ्यूज हुई एयर फ्रॉम द एल्वुलाई इनटू द पल्मोनरी कैपिलरीज। अब पल्मोनरी कैपिलरीज से में एयर ऑक्सीजनेट, पल्मोनरी कैपिलरीज का जो ब्लड था, it gets oxygenated and then it enters the heart. ठीक है, लेफ्ट साइड ऑफ एट्रियम से it will enter your heart and then it will be ejected in your systemic circulation. ठीक है, नाउ अब क्या है, अब ट्रांसपोर्ट की हम बात करें। डिफ्यूजन हमने डिस्कस कर ली थी। अब हाउ दिस जो ब्लड है विच इज कैरिंग ऑक्सीजन इन इट is transporting, is being transported from the lungs to the tissues. ठीक है, अब हम ट्रांसपोर्ट देखेंगे कि ठीक है जी, ऑक्सीजनेशन हो गई, गैस एक्सचेंज हो गई, डिफ्यूजन हो गई, वहां से आपकी ऑक्सीजन चली है लंग से और वो एंटर हो गई आपके हार्ट में, और हार्ट से इट एंटर्स द सर्कुलेशन। ठीक है, फिर वो वहां से इट इज कैरिड वाया, इट इज ट्रांसपोर्टेड in the blood and it reaches the tissues of the body. अब ये ट्रांसपोर्ट कैसे हो रही है? ठीक है, so oxygen diffuses from the alveoli into the pulmonary blood, then it reaches the peripheral tissue capillaries in combination with hemoglobin. ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, जब ये हीमोग्लोबिन में पहुंच जाएगी, ये देखो ये बड़ा अच्छा सा डायग्राम मुझे कहीं से मिल गया था, यहाँ पे ये देखो आपके लंग्स, आपने सांस ली, ठीक है, और आपके ये लंग्स में आपकी एयर आ गई। ठीक है, और ये देखो ये आपके लंग्स में आपकी एयर आ गई है। ठीक है, ऑक्सीजन आई है, ऑक्सीजन डिफ्यूज होके आपकी ब्लड वेसल्स में एंटर हुई है, और ब्लड वेसल्स में एंटर होके ये हार्ट से, ये आपके आगे लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में, और फिर ये हार्ट से पंप होके इट इज कैरिड, द ऑक्सीजन is carried via various blood vessels and then through the capillaries it reaches the tissues. अब जब वो यहाँ टिश्यूज में पहुंचेगी तो वहां से इट विल डिफ्यूज इनटू द टिश्यूज एंड फ्रॉम द टिश्यूज जो है दे आर, दिस ऑक्सीजन विल यूटिलाइज इन द टिश्यूज and carbon dioxide, you will get carbon dioxide and this carbon dioxide then will diffuse back into the veins and then these veins will carry this carbon deoxygenated blood to the heart and from the heart it will go enter into the lungs और फिर यहाँ पे exchange of gases होगी, कार्बन डाइऑक्साइड वापस निकल जाएगी into the lungs and as the blood moves on तो यहाँ पे the oxygen will enter these capillaries. ठीक है, अब ये जो आफ्टर एंटरिंग फिर ट्रांसपोर्ट कैसे हो रही है? ठीक है, हाउ इज ऑक्सीजन इज बीइंग ट्रांसपोर्टेड, तो यहाँ पे मोस्टली ऑक्सीजन जो है या डिजोल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हो रही है या इन कॉम्बिनेशन विद हीमोग्लोबिन। ठीक है, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ट्रांसपोर्ट हो रही है, डिजोल्व फॉर्म में भी है, बाइकार्बोनेट फॉर्म में भी है, और ये आपको हम फिर इन डिटेल बताएंगे कि किस किस फॉर्म में कैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है वो ट्रांसपोर्ट हो रही है। तो बेसिकली मूवमेंट ऑफ जो गैस हो रही है अक्रॉस द मूवमेंट ऑफ गैस देखो दो जगह हो रही है, मूवमेंट ऑफ गैसेस यहाँ पे हो रही है लंग्स में और मूवमेंट ऑफ गैसेस यहाँ टिश्यूज में हो रही है। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन ब्लड वेसल में एंटर हो रही है कैपिलरी में, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जो टिश्यूज में एंटर हो रही है और यहाँ टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड एंटर हो रही है इनटू द वेन्स। ठीक है, सो यहाँ पे ये जो मूवमेंट ऑफ द गैसेस है वो हो रही है ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। ठीक है, ऑक्सीजन लंग्स में ऑक्सीजन का प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन ज्यादा है एज कम्पेयर टू द ब्लड वेसल्स, सो ऑक्सीजन विल मूव फ्रॉम द लंग्स इनटू द एल्वुलाई इनटू द ब्लड वेसल्स। ठीक है, और जब आप यहाँ पे टिश्यूज में आओगे तो टिश्यूज में आपका ऑक्सीजन जो है वो लो है as compared to amount of the oxygen which is present in these blood vessels. So the oxygen will move from diffuse from higher concentration towards lower concentration. ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या है कि यहाँ टिश्यूज में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बनी हुई है और वेन्स में कार्बन डाइऑक्साइड कम है, तो कार्बन डाइऑक्साइड will move from higher pressure towards lower pressure gradient and so on. और फिर यहाँ पे जब आप लंग्स में पहुंचोगे तो क्या होगा, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है as compared to the alveoli, so carbon dioxide will move from this higher pressure areas toward the lower pressure areas. ठीक है,
अच्छा, मैं इसको जरा अच्छा, सॉरी, मैं आपको बड़ा करके दिखा देती हूँ, मैं ये डायग्राम दिखा देती हूँ। ठीक है, यहाँ देखो आपकी ये यू आर टेकिंग ब्रीदिंग इन, वेंटिलेशन हो रही है, आपकी ऑक्सीजन अंदर आई है, ऑक्सीजन से एंटर हुआ है, आपकी ऑक्सीजन यहाँ पे हाई प्रेशर में थी, यहाँ पे लो है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन विल एंटर फ्रॉम हाई प्रेशर टुवर्ड्स लो प्रेशर, फिर ये इट विल टेकन टू द हार्ट, हार्ट से ये जाएगी सिस्टमिक सर्कुलेशन में, यहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा है, टिश्यूज में ऑक्सीजन कम है, तो फिर ऑक्सीजन विल मूव फ्रॉम ब्लड वेसल्स इनटू द टिश्यूज। अब यहाँ पे टिश्यूज में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बन गई है, तो कार्बन डाइऑक्साइड ये पार्शियल प्रेशर यहाँ ज्यादा है एज कम्पेयर टू द वेन्स, so कार्बन डाइऑक्साइड विल एंटर द veins and it will enter the heart, and from the heart it will reach the lungs, और from lungs से ये जो है आपके यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर ज्यादा है एज कम्पेयर टू द लंग्स, तो यहाँ पे अभी कार्बन डाइऑक्साइड विल बी रिलीज इनटू द लंग्स टू बी एक्सपायर्ड आउट। ठीक है, अच्छा, so transport of oxygen and carbon dioxide by the blood depends upon the diffusion and flow of the blood to the tissue। ठीक है, अगर तो फ्लो ऑफ ब्लड ज्यादा है तो ट्रांसपोर्ट ज्यादा होगी, अगर फ्लो ऑफ ब्लड कम है तो ट्रांसपोर्ट कम होगी। दूसरी, ग्रेडियंट ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का ग्रेडियंट ज्यादा होगा तो डिफ्यूजन ज्यादा होगी, अगर ग्रेडियंट कम है तो डिफ्यूजन जो है वो कम होगी। ठीक है, तो दो चीजों पर डिपेंड करती है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, it depends upon diffusion and flow of the blood into the tissues। ठीक है, अच्छा, इसके बाद में आपको एक ये डायग्राम दिखाती हूँ। ठीक है, अभी मैं आपको ये डायग्राम दिखाती हूँ कि ये आपका दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट डायग्राम। ठीक है, ये ग्राफ इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाता है, ये आपका दिस थिंग, ये जो आपको लाइन नजर आ रही है, इससे ऊपर वाला पार्ट जो ये एल्वियोलाई है आपका, क्या है ये आपका, दिस इज योर एल्वियोलाई। ठीक है, और ये इसके साथ आपकी ब्लड वेसल पड़ी है, पल्मोनरी कैपिलरी पड़ी है। ठीक है, एल्वियोलाई में देखो आपके पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो है 104 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। ठीक है, एल्वियोलाई का पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है, 104 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। ठीक है, अब ये जो ब्लड आ रहा था जो लंग्स में एंटर होता है, उससे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है 40 मिलीमीटर। कितना होता है, 40 मिलीमीटर मर्क्यूरी होता है। अच्छा, अब क्या है कि अब आप देखो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 104 है एल्वियोलाई में, और पल्मोनरी कैपिलरी में है 40 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, राइट। So what will happen, the gas will start, the oxygen will start moving from the alveoli into the pulmonary capillary। ठीक है, ऑक्सीजन स्टार्ट्स मूविंग इन। ठीक है, डिफ्यूज करना शुरू हो जाती है इनटू द ड्यू टू प्रेशर ग्रेडियंट, राइट। सो until a stage will reach के प्रेशर जो है दोनों साइड पे, partial pressure of oxygen on both the side becomes almost equal, right। देखो, अच्छा, अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि the blood has reached only 1/3 of the capillary। ठीक है, ध्यान से सुनो ये बात, the blood when it reaches only first 1/3 of the capillary, the partial pressure of the oxygen in the blood vessels become almost the same which is in the alveoli, और further 2/3 of the capillary में जो है वो थोड़ा सा ये देखो बढ़ जाता है। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, ये देखो फर्स्ट 1/3 ऑफ कैपिलरी में पार्शियल प्रेशर, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है। ठीक है, फर्स्ट 1/3 ऑफ कैपिलरी में कितना रैपिडली, ठीक है, 1/3 तक पहुंचते, जैसे ही पहुंचा आपका ब्लड, तो आपके ब्लड की जो कॉन्सेंट्रेशन थी वो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो था आपके पल्मोनरी कैपिलरी का, वो 100 हो गया। ठीक है, और थोड़ा सा और आगे चलोगे आप तो बाकी जो थोड़ा बहुत है वो रेस्ट ऑफ द 2/3 में फिल अप हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, 104 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि मैक्सिमम अमाउंट जो है ऑक्सीजनेशन की पल्मोनरी कैपिलरी के फर्स्ट 1/3 पार्ट पोर्शन में ही हो जाती है। अच्छा, सो ब्लड इनिशियली आपका जो एल्वियोलाई का जो आपका है प्रेशर 104 है, यहाँ पे 140 है,
यानी डिफरेंस है अमाउंट कोई 64 का, ठीक है, 64 मिलीमीटर मर्क्यूरी का डिफरेंस है। और जब ये आपकी मूवमेंट ऑफ गैस होती है तो क्या होता है कि आपकी सॉरी blood PO2 rises almost to that of the alveolar air by the time the blood has moved a third of the distance through the capillary, becoming almost 104. Under non-exercising conditions, the blood becomes almost saturated with oxygen by the time it has passed through 1/3 of the pulmonary capillary. ठीक है, यानी कि नॉन एक्सरसाइजिंग कंडीशन में भी आप कंडीशन में क्या होता है कि जब आपका जो ब्लड है कंप्लीटली सेचुरेट हो जाता है जो पल्मोनरी कैपिलरी का है बाय द टाइम इट हैज पास थ्रू 1/3 ऑफ द यानी कि इनिशियल 1/3 ऑफ द पल्मोनरी कैपिलरी में ही आपका जो ब्लड है आपका कंप्लीटली सेचुरेट हो जाता है और थोड़ा सा एडिशनल ऑक्सीजन एंटर हो जाती है ड्यूरिंग द लेटर 2/3 ऑफ इट्स ट्रांजिट। ठीक है, इसका मतलब है कि द ब्लड नॉर्मली स्टेज इन द लंग कैपिलरीज अबाउट 3 times एज लॉन्ग एज नीडेड टू कॉज फुल ऑक्सीजनेशन। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि जो ब्लड है लेट्स से अगर हम 3 पार्ट्स को हम 3 मिनट्स में डिवाइड कर लें, 3 मिनट्स में डिवाइड कर लें, ठीक है, इसको हम 3 मिनट्स में डिवाइड कर लें, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट। ठीक है, तो फर्स्ट मिनट में ही आपका जो पल्मोनरी कैपिलरी है वो फुली आपकी सेचुरेट हो जाती है। पल्मोनरी कैपिलरी आपकी फर्स्ट मिनट में सेचुरेट हो जाती है, तो उसका मतलब है कि 2 मिनट तो वो ब्लड आपके जो है पल्मोनरी कैपिलरी में वो वैसे ही पड़ा रहता है। ठीक है, मतलब अगर यहाँ पे ही ब्लड जो है वो आगे चला जाए तो हमें कोई नुकसान नहीं होगा, इतने टाइम में वो फजूल में फालतू में ही ब्लड पड़ा रहता है यहाँ पे। ठीक है, ऑक्सीजनेशन तो यहाँ पर ही कंप्लीट हो जाती है ब्लड की, बाकी ये टाइम ऐसे ही फालतू पड़ा रहता है। फालतू ये नहीं पड़ा होता है। अब मैंने आपको बताया था कि जब हमने मेरे ख्याल में माइस्थीनिया ग्रेविस पढ़ा था, हमने सेफ्टी फैक्टर पढ़ा था एसिटाइलकोलिन के रिलीज का। ठीक है, तो मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी कि जैसे कुछ बच्चे होते हैं, मैंने आप लोगों को एक होमवर्क दिया, ठीक है, भाई ये 2 पेजेस याद करके आना। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि कुछ बच्चे जो करते हैं वो पूरा चैप्टर याद करके आ जाते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे हैं वो 2 चैप्टर याद करते हैं, कुछ बच्चे लेट से 2 पेजेस याद करने को कहें तो वो 6 पेजेस याद करके आ जाते हैं। ठीक है, तो उनके पास बड़ा सेफ्टी फैक्टर होता है कि भाई दे आर सेफ। ठीक है, दे आर सेफ, अगर टीचर ने एक्स्ट्रा भी पूछ लिया तो हम जवाब देने के काबिल होंगे। ठीक है, कि अगर टीचर ने लेट से इम्तिहान में हमने आपको सवाल दिए हैं, 6 सवाल दिए हैं, तो कुछ बच्चे एक्स्ट्रा पढ़ के आ जाते हैं और गलती से अगर टीचर ने आगे के सवाल भी डाल दिए हैं तो वो तो बच्चे सेफ हैं जिन्होंने ज्यादा पढ़ लिया है, हाँ, लेकिन वो बच्चे सेफ नहीं है जो, तो हम यहाँ पे कहानी जो है ना वही सेफ्टी की बात आ जाती है कि ये जो ब्लड फर्स्ट 1/3 पार्ट ऑफ कैपिलरी में सारा सेचुरेट हो जाता है और 2/3 में उसको सेचुरेशन की जरूरत नहीं होती है, तो वो नुकसान की बात नहीं होती है। हम कहते हैं देयर इज अ ग्रेट सेफ्टी फैक्टर फॉर डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन थ्रू द पल्मोनरी मेम्ब्रेन। ठीक है, सेफ्टी फैक्टर फॉर द डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन थ्रू द पल्मोनरी मेम्ब्रेन एक्सेस। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इस सेफ्टी फैक्टर का फायदा क्या है कि जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हो, ठीक है, तो आपको यू रिक्वायर 20 times मोर देन नॉर्मल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो अच्छा होता क्या जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, एक तो आपको ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए, ठीक है, दूसरे जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो आपका कार्डियक आउटपुट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, अब जब और आपका हार्ट रेट भी तेज हो जाता है। अब जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो, आपका हार्ट रेट ज्यादा हो गया, आपका कार्डियक आउटपुट ज्यादा हो गया है, तो जो ब्लड है वो पल्मोनरी कैपिलरी में थोड़ी देर के लिए ठहरेगा, बिकॉज कार्डियक आउटपुट ज्यादा हो गया है और रैपिड हो गया, जल्दी जल्दी ब्लड पुश हो रहा है। तो जो ब्लड लंग्स की जो पल्मोनरी वेसल्स हैं, इट विल स्टे देयर फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो इससे तो नुकसान होना चाहिए था हमें, हाँ, कि ब्लड को तो ऑक्सीजनेशन ही नहीं मिलेगी अगर जल्दी जल्दी ब्लड पंप हो रहा है। लेकिन होता ये है कि जो सेफ्टी फैक्टर था कि ब्लड वो सिर्फ अगर पहले 1 मिनट तक ही सपोजिटली, जो मैंने आपको कहा था कि फर्स्ट 1/3 में ही ब्लड फुली सेचुरेट हो जाता है। ठीक है, तो इवन व्हेन द पर्सन इज एक्सरसाइजिंग
the blood becomes almost saturated with oxygen by the time it leaves the pulmonary capillaries because of the great safety factor for diffusion of oxygen through the pulmonary membrane. हाँ, आगे बात समझ में कि ब्लड प्रेशर लंग्स में रैपिडली एंटर कर रहा है, लेकिन ये नहीं कि वो रैपिडली एंटर कर रहा है और रैपिडली लीव कर रहा है तो ऑक्सीजनेशन नहीं हो रही है, क्योंकि ऑक्सीजनेशन जो है उसकी फर्स्ट 1/3 में ही हो जाती है। ठीक है, ये फायदा है सेफ्टी फैक्टर का। सो हम जब बात करते हैं कि uptake of gases during uptake of oxygen by the pulmonary blood during exercise, तो diffusion capacity जो ऑक्सीजन की इंक्रीज करती है during exercise, क्यों? एक तो नंबर 1 सरफेस एरिया ऑफ द कैपिलरीज इंक्रीज कर जाता है। सरफेस एरिया ऑफ कैपिलरीज जब इंक्रीज करेगा तो आइडियल वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो हो जाती है इन अपर पार्ट्स ऑफ द लंग। नंबर 3 ग्रेट सेफ्टी फैक्टर फॉर डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन थ्रू द पल्मोनरी मेम्ब्रेन। ठीक है, ये 3 इंपॉर्टेंट। जब एक्सरसाइज के बारे में पूछा जाए ना कि जी जब एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो उसका क्या इफेक्ट होता है, हाउ द डिफ्यूजन कैपेसिटी इंक्रीज ड्यूरिंग एक्सरसाइज, तो आप बताओगे तो सरफेस एरिया कैपिलरीज ओपन हो जाती हैं, डोर्मेंट कैपिलरीज ओपन हो जाती हैं, उनके होने ऊपर ओपन होने से जो ऊपर की जो ब्लड वेसल्स हैं वो भी ओपन हो जाती हैं, तो वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो भी आइडियल हो जाती है। नंबर 3 जो इम्पोर्टेंट बात है वो ग्रेट सेफ्टी फैक्टर है, ठीक है, फॉर द डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन थ्रू द पल्मोनरी मेम्ब्रेन। ठीक है, तो एक तो ये बात इंपॉर्टेंट है जो आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, दूसरी बात आपसे बहुत ज्यादा पूछी जा सकती है, वो है आपका वीनस एडमिक्सचर ऑफ ब्लड। वीनस एडमिक्सचर ऑफ ब्लड में क्या होता है बच्चों के आपका जो ब्लड आपके जो लेफ्ट एट्रियम में लंग्स से ऑक्सीजनेट होकर एंटर होता है, 98% ऑफ दैट ब्लड जो है which is which is entering your left atrium from the lungs, उसकी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है 104 मिलीमीटर। ठीक है, उसका पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है 104 मिलीमीटर। अच्छा, 98% ब्लड का 2% ऑफ द ब्लड जो है वो आ रहा होता है फ्रॉम द ब्रोंकियल सर्कुलेशन। 2% ऑफ द ब्लड एओर्टा से जाएगा ब्रोंकियल्स में और वो डीप टिश्यूज ऑफ द लंग्स को एरिएट करेगा वो ब्लड और ऑक्सीजनेट करेगा, और उसके बाद वो ब्लड जो है फिर वो एंटर होता है आप इनटू द लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, तो ये जो ब्लड है ये इट इज नॉट एक्सपोज टू द लंग एयर। ठीक है, जो ब्रोंकियल सर्कुलेशन का जो ब्लड है वो सप्लाई करके टिश्यूज को ऑक्सीजन और वहां से मेटाबॉलिक कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आ जाता है इनटू द लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, तो बट ये जो ब्रोंकियल सर्कुलेशन का ब्लड है ये ऑक्सीजनेट नहीं होता, इट इज नॉट एक्सपोज टू लंग एयर। तो 98% तो ऑक्सीजनेट होके आ रहा है, 2% ब्रोंकियल सर्कुलेशन से अनऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। ठीक है, तो जब ये दोनों ब्लड मिक्सअप होते हैं ऑन लीविंग द लंग्स, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ऑफ द शंटेड ब्लड इज अबाउट दैट ऑफ नॉर्मल सिस्टेमिक वेनस ब्लड। तो अब क्या होगा कि यहाँ पे अब आपका अच्छा, अब ये जो आपका ब्रोंकियल सर्कुलेशन का जो ब्लड था उसमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होगा 40 मिलीमीटर मर्क्यूरी। ठीक है, जो ब्रोंकियल 2% ब्रोंकियल सर्कुलेशन से जो ब्लड आ रहा है वो नॉन ऑक्सीजनेटेड है, तो उसके अंदर जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो 40 मिलीमीटर है। जो ऑक्सीजनेटेड 98% लंग्स से आ रहा है उसका 104 है। ठीक है, तो जब when both these bloods they combine in the pulmonary veins, तो what will happen कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द एल्वियोलर कैपिलरीज का जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है इट विल फॉल डाउन टू 95 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। ठीक है, यानी कि लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है 104 मिलीमीटर मर्क्यूरी, उसमें 2% ब्लड जो है ब्रोंकियल सर्कुलेशन का ऐड होता है जिसकी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है 40 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। ये जो है 40 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी और 104 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी या दोनों के दोनों कंबाइन करेंगे इन द पल्मोनरी वेन्स, तो जो ब्लड आपके हार्ट के अंदर एंटर होगा उसका पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन फॉल करके 95 मिलीमीटर मर्क्यूरी हो जाएगा। ये आपको वैल्यूज रटी हुई होना चाहिए कि एल्वियोलस में 104 है
फिर जो 2% आपकी आ रही है जो, तो पल्मोनरी कैपिलरी का भी 104 ही होगा, लेकिन जब उसमें 2% ऐड हो जाएगा ब्रोंकियल सर्कुलेशन का ब्लड, तो फिर जो ब्लड एंटर हो रहा है आपके लेफ्ट हार्ट में, उसका जो आर्टीरियल पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो 95 मिलीमीटर मर्क्यूरी होगा। ये आपको बहुत अच्छी तरह से याद होनी चाहिए वैल्यूज। अच्छा अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ये भी आपने जरूर कर लेना है, ठीक है। ये देखो, इसमें आपको डिफरेंट एरियाज में आपको पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन दिखाया गया है, ठीक है। फ्रॉम 0 till 100 ये देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है। और ये देखो सिस्टेमिक वीनस ब्लड, सिस्टेमिक वीनस ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है 40। अब ये वीनस ब्लड एंटर हुआ है आपका लंग्स में, ये वीनस ब्लड आपका पल्मोनरी कैपिलरीज में एंटर हो गया, ठीक। वीनस ब्लड आपके लंग्स में आया तो क्या हुआ कि ये देखो फर्स्ट 1/3 में ही आपका जो ब्लड है उसकी सेचुरेशन ऑलमोस्ट 104 हो जाती है, ठीक है। और उसके बाद ये पल्मोनरी कैपिलरीज में आपका स्टेटस है ऑक्सीजनेशन का ब्लड के, इनके फर्स्ट 1/3 में एकदम से रैपिड राइज आती है, यहाँ पे पूरा ऑलमोस्ट 100 हो जाता है, फिर बाकी 102, 103 एंड 104, ये आपकी पल्मोनरी कैपिलरीज की सिनेरियो। उसके बाद आप यहाँ ये देखो, ये डिप क्यों आ रही है, ये डिप है वीनस एडमिक्सचर ऑफ ब्लड, बहुत पूछ लेते हैं एग्जामिनर कि वीनस एडमिक्सचर ऑफ ब्लड क्या होता है। यानी कि यहाँ पे पल्मोनरी जो कैपिलरीज जिनमें 104 मिलीमीटर मर्क्यूरी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन था, यहाँ पे वो आके मिक्सअप हो गया विद द ब्रोंकियल सर्कुलेशन, तो उसका जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है फॉल डाउन कर जाता है, 95 पे आ जाता है। अब ये सिस्टेमिक आर्टीरियल ब्लड है, इसमें आपका थ्रू आउट देखो 95 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी प्रेशर है, ठीक है। अब आप आ जाओ जी सिस्टेमिक ब्लड टिश्यूज की कैपिलरीज में। अब कहाँ आ गए आप, टिश्यूज की कैपिलरीज में। टिश्यू की कैपिलरीज में भी क्या होता है कि ये देखो, जैसे टिश्यूज में आपका ब्लड एंटर होता है तो एकदम से रैपिडली ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है और ऑक्सीजन प्रेशर का पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन फॉल कर जाता है 40 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, ठीक है। और उसके बाद जब वो सिस्टेमिक कैपिलरीज में फर्स्ट 1/3 में ही सारी ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है और उसके बाद 2/3 में आपका ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन 40 रहता है, ये भी एक सेफ्टी फैक्टर है, ठीक है। और उसके बाद सिस्टेमिक वीनस ब्लड में आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 40 रहता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको वैल्यूज पता होना चाहिए कि सिस्टेमिक वीनस ब्लड में 40 मिलीमीटर मर्क्यूरी है। पल्मोनरी कैपिलरीज में पहले इनिशियली 1/3 में रैपिड राइज होगा, उसके बाद नेक्स्ट 2/3 में स्टैटिक रहेगा, फिर यहाँ पे आके सिस्टेमिक आर्टरी ब्लड में एक डिप आएगी, डिप के बाद आपका यहाँ पे आ जाएगा सिस्टेमिक आर्टरी ब्लड में 95 मिलीमीटर प्रेशर हो जाएगा। और फिर आप जैसे टिश्यूज में एंटर हो गए, टिश्यूज से सिस्टेमिक कैपिलरीज में, तो एकदम से ऑक्सीजन जो है वो रिलीज हो जाएगी और फर्स्ट 1/3 में ही मैक्सिमम ऑक्सीजन जो है वो रिलीज हो जाती है। उसके बाद लेटर 2/3 में जो आपकी ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो 40 ही रहता है आपके सिस्टेमिक टिश्यू से कैपिलरीज में। और यहाँ पे फिर आपके वीनस ब्लड में भी 40 मिलीमीटर मर्क्यूरी आपका सिस्टेमिक वीनस प्रेशर रहता है, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। अच्छा, सो हमने बात कर ली कि हमने इसका मतलब पहले तो हमने बात कर ली कि जी लंग्स में क्या हो रहा है, ठीक है। ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट की हम बात कर रहे हैं, फिलहाल अभी हम ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट की बात करें कि लंग्स में एल्वियोलाई से आपका ब्लड एंटर हुआ आपकी कैपिलरीज में, ठीक है। अच्छा, कैपिलरी से एंटर होके वो आपका एंटर हो गया आपके हार्ट में, हाँ एंटर हो गया आपके हार्ट में एंटर होने से पहले वीनस एडमिक्सचर ऑफ ब्लड हो गया और फिर वो ब्लड वेसल्स में अब वो जा रहा है, ठीक है। ब्लड वेसल्स में जाके वो अब सिस्टेमिक कैपिलरीज में पहुंच गया, यानी कि टिश्यूज में पहुंच गया। अब ये आपके जनाब टिश्यू का है, ठीक है, सिस्टेमिक कैपिलरी है, ये आपकी सिस्टेमिक कैपिलरी है जिसका एक आर्टेरियल एंड है और ये आप इसका वीनस एंड है, ठीक है। सो यहाँ पे अब आप देखो कि आप आर्टेरियल एंड में कितना था, कितना ब्लड वीनस एडमिक्सचर के बाद आपकी सर्कुलेशन में जो ब्लड घूम रहा था
बिफोर एंटरिंग द टिश्यूज उसका पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो आपका 95 मिलीमीटर मर्क्यूरी, ठीक है। 95 मिलीमीटर मर्क्यूरी आपके टिश्यू तक पहुंच गया। अब क्या होगा कि पहले वो डिस्कस कर रहा है कि गैस की डिफ्यूजन इन रिलेशन टू द टिश्यू फ्लूइड। पहले वो टिश्यू फ्लूइड के साथ बात करता है, फिर वो सेल्स की बात करता है, ठीक है। तो पहले हम टिश्यूज की बात कर लेते हैं कि दिस है कि अब आपका 95 मिलीमीटर मर्क्यूरी आपके सिस्टेमिक ब्लड वेसल्स का पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन था। जो टिश्यू फ्लूइड है उसका पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो 40 मिलीमीटर मर्क्यूरी है। तो क्या होगा कि ड्यू टू प्रेशर ग्रेडियंट द ऑक्सीजन विल मूव from the systemic arterial end of the capillaries into the tissue, ठीक है। क्या होगा कि जब ये जो है ना ऑक्सीजन जो है वो एंटर होना शुरू हो जाएगी आपके टिश्यूज में, ठीक है। और इतनी ऑक्सीजन एंटर हो जाएगी कि by the time the blood reaches the venous end of the capillary, तो the partial pressure of the oxygen becomes 40 millimeters mercury, almost the same जो कि आपके टिश्यू का partial pressure of oxygen, ठीक है। सिंपल सी बात है। 95 मिलीमीटर मर्क्यूरी जो ब्लड आपके टिश्यूज में पहुंचा आर्टेरियल एंड ऑफ द कैपिलरी में 95 मिलीमीटर है। बाय द टाइम इट पासेस थ्रू द कैपिलरीज, तो द ऑक्सीजन विल मूव फ्रॉम द this thing from the pulmonary capillary into the tissues until a stage which reach when the partial pressure of the oxygen at the venous end of the capillary becomes 40 millimeter mercury, which is the same as the tissue। इनकी सारी ऑक्सीजन जो है वो आपकी इसमें आ जाती है, ठीक है। अच्छा टिश्यू में जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है दैट इज डिटरमिन्ड बाय अ बैलेंस बिटवीन रेट ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट या रेट ऑफ ब्लड फ्लो टू द टिश्यूज इन द ब्लड, ठीक है। और नंबर 2 डिपेंड्स अपॉन द रेट एट विच द ऑक्सीजन इज यूज्ड बाय द टिश्यू। टिश्यू में जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है कितनी है, अभी 40 है ना, नॉर्मली 40 होती है, ठीक है। It depends upon it is determined by a balance between rate of oxygen transport यानी कि rate of blood flow to the tissue and rate at which the oxygen is used by the tissues। अब मुझे बताओ, देखो अगर rate of blood flow tissues में ज्यादा होगा, ठीक है, तो amount of oxygen flowing into the tissues will be more। अगर oxygen rate of blood flow कम है तो amount of blood flowing to the tissues will be less। दूसरे क्या है, the rate at which the oxygen is used by the tissues। अगर ऑक्सीजन ज्यादा टिश्यू यूज कर रहे हैं तो वहां पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम हो जाएगा, ठीक है। और अगर टिश्यूज जो हैं यूज नहीं कर रहे ऑक्सीजन तो वहां पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन टिश्यूज में ज्यादा होगा, ठीक है। अच्छा ये जो है जो सारी डिस्क्रिप्शन थी वो इस ग्राफ की डिस्क्रिप्शन है। देखो अब ये उन्होंने एक आपको ग्राफ दिखाया हुआ है, ठीक है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे देखो ये आपका इंटरस्टिशियल फ्लूइड के पास टिश्यू फ्लूइड की जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है ये, और यहाँ पे ये शो कर रहा है कि जी ब्लड फ्लो कितना हो रहा है, ठीक है। तो वो ये दिखा रहा है कि यहाँ पे जो है आपका दिस इज द नॉर्मल ऑक्सीजन कंजम्पशन, ठीक है। तो अगर ब्लड फ्लो 100 पे आपका नॉर्मल ऑक्सीजन कंजम्पशन ए है, ठीक है, यहाँ पे ये इतनी ऑक्सीजन कंज्यूम हो रही है 40, ठीक है, 40 है आपका इंटरस्टिशियल फ्लूइड का पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एट 100। अगर ब्लड फ्लो 100 है तो आपका टिश्यू का पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है 40, ठीक है। अगर हम ब्लड फ्लो को बढ़ा देते हैं, लेट्स से 100 से ब्लड फ्लो को हम 400 पे ले आते हैं, 400% इंक्रीज ऑफ द ब्लड हो जाएगा, तो व्हाट विल हैपन कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द टिश्यू फ्लूइड विल बिकम 60, ठीक है, 60 हो जाएगा। अगर हम ब्लड फ्लो जो है लेट्स से 100% से 400% कर दिया है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द टिश्यू इंस्टेड ऑफ 40 इट विल बिकम 60, ठीक है। लेकिन एक चीज हम याद रखो कि ये नहीं होगा कि हमने अगर 600 या 700 कर दिया है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 100 हो जाएगा, नो, क्यों नहीं होगा 100। अगर हमने पार्शियल प्रेशर ब्लड फ्लो इंक्रीज कर दिया 700 कर दिया तो यहाँ पे आप देखो कि
टिश्यू में जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन वो 90 के 90 के पास पास है, ठीक है, 100 नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा 100 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपका अमाउंट ऑफ 95 तो वैसी वैल्यू है आपकी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन की ब्लड के अंदर, ठीक है। जो जो आर्टीरियल एंड है उसमें 95 मिलीमीटर मर्करी है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। तो अगर आप ब्लड फ्लो कितना ही ज्यादा बढ़ा दोगे, टिश्यू में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 95 से ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि कैपिलरी साइड एंड पे, आर्टीरियल एंड पे कैपिलरी के जो ब्लड आ रहा है उसमें है ही 95 मिलीमीटर मर्करी ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, तो वो उससे ज्यादा तो होगा ही नहीं, ठीक है। आपने अगर 700 भी कर दिया है तो ये देखो, अगर आपने 700 भी कर दिया है तो टिश्यू में इंक्रीज जो है वो 95 से ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, फिर वो ये कहता है जी कि अगर ऑक्सीजन कंजम्पशन ज्यादा हो रही है, ऑक्सीजन कंजम्पशन जो है वो ज्यादा हो रही है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो कम है, और अगर ऑक्सीजन कंजम्पशन कम हो रही है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है ब्लड टिश्यू में ज्यादा हो जाता है, ठीक है। अगर टिश्यू ऑक्सीजन ज्यादा यूटिलाइज कर रहे हैं तो आपका ये देखो, यहाँ पे आप देखो ये ब्लड फ्लो, अच्छा ये ब्लड फ्लो ज्यादा है तो 60 हो गया, ब्लड फ्लो अगर कम है तो टिश्यू का आर्टीरियल जो है इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेशर वो हो जाता है 20 से भी कम, 10 पे आ जाता है। अच्छा, और अगर टिश्यू जो मेटाबॉलिज्म है, अगर ऑक्सीजन की मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा हो रही है तो टिश्यू में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन फॉल कर जाता है, और अगर टिश्यू में मेटाबॉलिज्म जो है वो कम हो रही है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन टिश्यूज में ज्यादा होता है, ठीक है। So if the cells use more oxygen for metabolism than normally, this reduces the interstitial fluid partial pressure of oxygen and vice versa. ये टिश्यू में टिश्यू फ्लूइड की बात हो रही है, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द पेरिफेरल कैपिलरीज टू द सेल्स, टिश्यू सेल से बात कर लेते हैं। अच्छा, ये आपके जी टिश्यू सेल्स हैं, ठीक है। अच्छा, पहले हम बात कर रहे थे कि ये हमने इंटरस्टिशियल टिश्यू फ्लूइड की बात की थी, हम टिश्यू सेल्स की बात करते हैं। अब कुछ सेल्स जो हैं वो आर्टीरियल एंड ऑफ द कैपिलरी के नजदीक है, कुछ सेल्स जो हैं वो आर्टीरियल एंड ऑफ द कैपिलरी से अवे हैं। Some of the cells are close to the arterial end of the capillaries, and some of the cells they are away from the arterial end of the capillaries. The cells which are close to arterial end of the capillaries, उनका partial pressure of oxygen ज़्यादा होगा as compared to the cells which are away, ठीक है। तो हम उनका एवरेज निकालते हैं, तो जो partial pressure of oxygen in the cells है that is 23 millimeters of mercury, ठीक है। partial pressure of oxygen जो cells में है that is 23 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। अब आपने मिक्सअप गड़बड़ नहीं करनी है, पहले जितनी मैंने बात की थी वो मैंने जो टिश्यू में जो फ्लूइड था उसकी बात की थी, ठीक है। टिश्यू का जो फ्लूइड है हमने उसकी बात की थी, राइट है। अब हम बात, और टिश्यू फ्लूइड जो है उसमें क्या हो रहा है, 40 मिलीमीटर मर्करी है, और जब वहां से ब्लड गुजरेगा तो वो 95 से 40 हो जाएगा वीनस एंड पे जाके। और ये जो 40 मिलीमीटर मर्करी है वो डिपेंड करता है दो चीजों के ऊपर, एक तो अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लो और दूसरा अमाउंट ऑफ टिश्यू कंजम्पशन ऑफ ऑक्सीजन बाय द टिश्यूज। अगर यहाँ पे सेल्स जो हैं आपके, सेल्स जो हैं वो टिश्यू वो ऑक्सीजन को ज्यादा मेटाबोलाइज कर रहे हैं तो ऑक्सीजन ये दिस विल फॉल, और अगर ये जो सेल्स हैं ऑक्सीजन को नहीं मेटाबोलाइज कर रहे हैं, यूज नहीं हो रही ऑक्सीजन, सेल रेस्ट कर रहा है, तो क्या होगा कि ये जो 40 मिलीमीटर मर्करी जो है ये बढ़ जाएगा। अगर ब्लड फ्लो यहाँ पे ज्यादा होगा तो फिर यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा हो जाएगा टिश्यू फ्लूइड में, और अगर ब्लड फ्लो यहाँ पे स्लो है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। फिर हमने सेल्स की बात की कि सेल्स में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कैसा होता है, तो जो सेल नजदीक होते हैं वहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा है, जो सेल्स आर अवे they have less partial pressure of oxygen, और टोटल बनता है 23 मिलीमीटर। अगर हम एवरेज निकालें तो it is in the cells the partial pressure of oxygen is around 23 millimeters of mercury, ठीक है।
यानी कि नॉर्मल सेल्स में प्रेशर जो है एज लो एज 5 मिलीमीटर, जो अवे फ्रॉम द आर्टीरियल एंड है वहाँ पे 5 मिलीमीटर मर्क्यूरी होगा, जो क्लोज टू द आर्टीरियल एंड है वहाँ पे 40 मिलीमीटर मर्क्यूरी होगा, एवरेज है 23। अच्छा, अब मजे की बात देखो कि आपके सेल्स को for the chemical processes to go on, the amount of oxygen which the cells use, they only require 1 to 3 millimeters mercury of oxygen pressure. तो वहां पे 23 है आपके सेल्स के अंदर। जो सेल्स हैं आपके, उनके अंदर जो सेलुलर रिएक्शंस हो रहे हैं, केमिकल प्रोसेसेस जो हो रहे हैं, उनको to carry on and for this full support of the chemical processes, the cells only need 1 to 3 millimeters mercury of oxygen pressure. यानी कि अगर वहां पे सेल्स के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 1 to 3 मिलीमीटर मर्क्यूरी है, तो दैट इज सफिशिएंट फॉर द केमिकल प्रोसेसेस टू टेक प्लेस इनसाइड द सेल्स। मगर सेल के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो 23 मिलीमीटर मर्क्यूरी है, कितना ज्यादा है, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो एंड दिस ऑल्सो प्रोवाइड्स अ लार्ज सेफ्टी फैक्टर, ठीक है। इससे भी फायदा है कि जरूरत कम की है लेकिन वहां पे ऑक्सीजन ज्यादा मौजूद है, तो ये भी सेफ्टी फैक्टर्स है इन द सेल्स के लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड बट द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इज मोर, ठीक है। ये भी एक सेफ्टी फैक्टर है। तो हमने बात कर ली आपके ऑक्सीजन की डिफ्यूजन की, ठीक है। अब हम आ जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के डिफ्यूजन, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है आपके बॉडी के अंदर, ये देखो ये आपके सेल्स हैं, ऑक्सीजन आई यहाँ पे, सेल की मेटाबॉलिज्म हुई, सेलुलर मेटाबॉलिज्म हुई, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड बनी, ठीक है। दिस कार्बन डाइऑक्साइड देन इट विल डिफ्यूज इनटू द कैपिलरीज, इट विल एंटर द वेन्स, it will enter the right side of the heart, and from the right side of the heart it will enter your lungs। और यहाँ पे लंग्स में क्या होगा कि लंग्स में यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है पल्मोनरी कैपिलरीज में एज कंपेयर टू द लंग्स, सो कार्बन डाइऑक्साइड जो है डिफ्यूज आउट करेगी फ्रॉम द लंग्स, फ्रॉम द कैपिलरीज इनटू द लंग्स, एंड फ्रॉम द लंग्स इट इज एक्सपायर्ड इनटू द एयर, ठीक है। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात क्या है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो वो डिफ्यूज करती है इन द डायरेक्शन एग्जैक्टली ऑपोजिट टू द डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑपोजिट है, ऑक्सीजन अंदर आ रही है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रही है, ठीक है। ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूज कर रही है इनटू योर पल्मोनरी कैपिलरीज, और कार्बन डाइऑक्साइड इज मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, राइट। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात थोड़ी सी डिफरेंट है। अब आप लोगों ने याद है, अब पढ़ा था कि कार्बन डाइऑक्साइड कैन डिफ्यूज अबाउट 20 टाइम्स एज रैपिडली एज ऑक्सीजन, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है कैन डिफ्यूज 20 टाइम्स एज रैपिडली एज ऑक्सीजन। सो क्योंकि सॉल्युबिलिटी उसकी बहुत अच्छी है और कार्बन डाइऑक्साइड की, तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड को इतने हाई प्रेशर डिफरेंस नहीं चाहिए होते फॉर द मूवमेंट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। far less pressure differences, they are enough to transport the carbon dioxide because of the high solubility of carbon dioxide, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड कैन डिफ्यूज 20 टाइम्स एज रैपिडली एज ऑक्सीजन, तो इसलिए प्रेशर डिफरेंसेस इतने ज्यादा नहीं चाहिए होते फॉर द डिफ्यूजन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, ये देखो, अब जब हम कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड हम टिश्यू से शुरू करेंगे, ठीक है। हमने जब ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट की बात की थी तो हमने शुरू किया था लंग की कैपिलरी से और हमने एंड किया था टिश्यूज में आके, ठीक है। जब हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे तो वी विल स्टार्ट विद द टिश्यूज, ठीक है, विद सिस्टेमिक कैपिलरी से बात करेंगे क्योंकि टिश्यूज जो हैं वो बना रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ बन रही है, आपके टिश्यूज के अंदर बन रही है, ठीक है। तो अब आप ये देखो कि वही आर्टीरियल एंड ऑफ द कैपिलरी है आपका, हाँ, जिसमें 95 मिलीमीटर ऑक्सीजन थी, याद है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड उसमें कितनी थी, 40 मिलीमीटर। कार्बन डाइऑक्साइड उसमें कितनी थी, 40 मिलीमीटर।
अच्छा, अब आप आ जाओ टिश्यू फ्लूइड में। ये देखो, ये टिश्यू फ्लूइड है। टिश्यू फ्लूइड में 45 मिलीमीटर मर्करी आपकी है कार्बन डाइऑक्साइड, और सेल्स के अंदर देखो 46 मिलीमीटर, क्योंकि सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म हो रही है ना, तो सेल्स के अंदर 46 मिलीमीटर मर्करी आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है। अब देखो, ये 40 मिलीमीटर मर्करी है और ये 45 मिलीमीटर मर्करी, सिर्फ 5 मिलीमीटर मर्करी का प्रेशर डिफरेंस, ठीक है। इसी तरह सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड 46 मिलीमीटर मर्करी है, टिश्यू में 45 है, तो डिफरेंस जो है वो सिर्फ 1 मिलीमीटर मर्करी का है। तो वन यहाँ पे सिर्फ 5 मिलीमीटर मर्करी और यहाँ पे सिर्फ 1 मिलीमीटर मर्करी का डिफरेंस इज सफिशिएंट इनफ to make the gases move out from the cells and the tissues into the venous blood, ठीक है। अब ये जो ब्लड आया यहाँ पे, ये देखो, ये जो ब्लड आ रहा है यहाँ पे, इसके अंदर 40 मिलीमीटर ऑफ मर्करी ब्लड, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, इसके अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 40 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है। और यहाँ पे देखो आप कि यहाँ पे 45 है और यहाँ पे 46 है, तो 46 है तो द गैस विल मूव फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड विल मूव फ्रॉम द सेल्स इनटू द टिश्यू फ्लूइड, और टिश्यू फ्लूइड से दिस कार्बन डाइऑक्साइड विल मूव इनटू द कैपिलरी ब्लड, और बाय द टाइम द ब्लड रीचेस द वेनस एंड ऑफ द कैपिलरी, तो कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो चुकी होती है उस ब्लड के अंदर, और यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बिकम्स 45 मिलीमीटर मर्करी, जो कि अभी आर्टीरियल एंड पे 40 मिलीमीटर था, ठीक है। यहाँ पे वो वीनस एंड पे 45 मिलीमीटर मर्करी हो जाता है, जो कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है टिश्यू फ्लूइड का, टिश्यू उसके बराबर हो जाता है, ठीक है। तो बाय द टाइम द ब्लड रीचेस, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर हो जाता है 45 मिलीमीटर, ठीक है, और ऑक्सीजन का कितना होता है 40 मिलीमीटर, ठीक है। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, तो हम मिक्सअप नहीं कहेंगे। आर्टीरियल एंड में 40 मिलीमीटर मर्करी है और सो ऑन। अच्छा, हाँ, अच्छा, अब हम आ जाते हैं जी लंग्स में। अब वो सारा जो ब्लड था ना, वीनस ब्लड कैरिंग कार्बन डाइऑक्साइड, इट रीचेस द फ्रॉम राइट साइड ऑफ द हार्ट, इट रीचेस द लंग्स। अब ये लंग्स में पहुंच गया। अब क्या होगा, ये एल्वेलाई हैं, ये वही पल्मोनरी कैपिलरी है। अब यहाँ पे भी देखो वही कहानी चल रही है कि कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे 45 मिलीमीटर मर्करी है, जब बाय द टाइम इट रीचेस, जब यहाँ पहुंचती तो इसका पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर है वो 45 है, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के एल्वेलाई में पार्शियल प्रेशर है 40। तो क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड विल मूव फ्रॉम द पल्मोनरी कैपिलरी इनटू द एल्वेलाई, फ्रॉम द पल्मोनरी कैपिलरी इनटू द एल्वेलाई। अब ये जब एल्वेलाई में चला जाएगा तो क्या होगा, अभी कितनी रैपिडली जा रहा है, यानी कि आप फिर यहाँ पे देखो कि सिर्फ फर्स्ट 1/3 में कैपिलरी में ही ब्लड ट्रेवल किया होता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बिकम्स 40 मिलीमीटर, यानी कि जितनी कार्बन डाइऑक्साइड निकलनी होती ना, वो सारी की सारी फर्स्ट 1/3 में ही निकल जाती है, ठीक है। तो ये भी एक सेफ्टी फैक्टर है। सेम जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, सेम जैसे कि ऑक्सीजन फर्स्ट 1/3 में एंटर हो जाती है, सारी की सारी ऑक्सीजन एल्वेलाई से एंटर हो जाती है, ऑक्सीजन फर्स्ट 1/3 में, इसी तरह से सारी की सारी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फर्स्ट 1/3 में पल्मोनरी कैपिलरी से एल्वेलाई में एंटर हो जाती है, ठीक है। अच्छा, फैक्टर्स अफेक्टिंग कार्बन डाइऑक्साइड इन द टिश्यूज, एक तो ब्लड फ्लो कितना है, दूसरे टिश्यू में मेटाबॉलिज्म कितनी हो रही है, बिल्कुल वही फैक्टर्स हैं, ठीक है। अगर टिश्यू कैपिलरी में ब्लड फ्लो स्लो है, टिश्यू कैपिलरी में ब्लड फ्लो अगर स्लो हो गया है, तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड वहां पे जमा हो जाएगी, ठीक है। इट विल नॉट बी रिमूव एंड द कार्बन डाइऑक्साइड विल स्टे देयर, एंड कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रेशर है 45 से 60 मिलीमीटर मर्करी हो जाएगा दूसरे। लेकिन अगर ब्लड फ्लो वहां पे ज्यादा है, ठीक है, तो व्हाट विल हैपन कि इट विल वॉश अवे द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द टिश्यू, ठीक है। ये मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखो यहाँ पे अगर ब्लड फ्लो जो है आपका ज्यादा है, तो क्या होगा कि 45 मिलीमीटर से बजाय यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन 41 हो जाएगा, वो वॉश अवे कर लेगा, तेज रैपिड फ्लो ऑफ ब्लड विल वॉश अवे कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द टिश्यू। लेकिन अगर ब्लड फ्लो स्लो है, याद है शॉक में हमने पढ़ा था कि अगर ब्लड फ्लो स्लो होगा तो व्हाट विल हैपन,
the carbon dioxide will accumulate here. ठीक है, it will not be washed out. So this can become 60 millimeters, right? दूसरी बात क्या है, रेट ऑफ ब्लड फ्लो ज्यादा है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाएगा, ब्लड फ्लो कम है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर टिश्यू में ज्यादा हो जाएगा. दूसरी चीज क्या अफेक्ट करी, टिश्यू मेटाबॉलिज्म. अगर यहाँ पर टिश्यू मेटाबॉलिज्म ज्यादा हो रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा, और अगर टिश्यू मेटाबॉलिज्म यहाँ पे कम है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे हो जाएगा कम. ठीक है, फिर ये वही ग्राफ है. ये दोनों ग्राफ है कोई इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप ये देख लो कि मेटाबॉलिज्म अगर नॉर्मल है तो आप ये देखो कि यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 40 के आसपास है. अगर मेटाबॉलिज्म ज्यादा हो रही है तो ज्यादा हो गया है. और अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लो भी देखो, अगर ब्लड फ्लो ज्यादा है तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा जब एक्यूमुलेट हो रही है एंड वाइस वर्सा. ठीक है, अच्छा उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि गैसेस किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती हैं. ठीक है, तो गैसेस जो हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट ऑक्सीजन, तो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है कि ऑक्सीजन जो प्लाज्मा होता है उसके अंदर जो वाटर है उसके अंदर फिजिकली डिसॉल्व होती है, और एंड दैट इज ओनली 1.5%. ठीक है, 1.5% जो है सिर्फ डिसॉल्व फॉर्म में होती है. बाकी जो ऑक्सीजन है दैट इज बाउंड टू हीमोग्लोबिन, दैट इज बाउंड टू हीमोग्लोबिन, यानी 98.5% जो ऑक्सीजन जो है वो दैट इज बाउंड टू हीमोग्लोबिन. फिर इंपॉर्टेंट बात है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है 10% फिजिकली डिसॉल्व्ड है, 30% इज बाउंड टू हीमोग्लोबिन एंड 60% जो है इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस. ठीक है, अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे. अच्छा बच्चों, बस एक बिफोर आई फिनिश एक इंटरेस्टिंग बात याद रखो, ये आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है ना वो डिटरमिन्ड बाय द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिसॉल्व इन प्लाज्मा वाटर. ठीक है, अमाउंट ऑफ जितनी ऑक्सीजन डिसॉल्व होगी प्लाज्मा वाटर में उतना ही पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होगा, ये बात याद रखो. ठीक है, अच्छा दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि बहुत थोड़ी सी ऑक्सीजन है वो डिसॉल्व करती है प्लाज्मा वाटर. ठीक है, अच्छा अब 100 मिलीमीटर मर्क्यूरी अगर आर्टीरियल प्रेशर है तो उसमें सिर्फ 3 ml ऑक्सीजन विल कंबाइन विद 1 लीटर ऑफ ब्लड. 1 लीटर ब्लड में सिर्फ 3 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो डिसॉल्व हो रही है. यानी कि अगर आपकी बॉडी में एक वक्त में 5 लीटर ब्लड फ्लो कर रहा है तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी के अंदर सिर्फ 15 ml ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है. ठीक है, अब इवन अंडर रेस्टिंग कंडीशंस आपकी बॉडी को चाहिए 250 ml ऑफ ऑक्सीजन. तो 250 ml ऑक्सीजन को प्रोवाइड करने के लिए आपका कार्डियक अगर 80 कार्डियक आउटपुट 83 लीटर्स होगा तब ही आपकी ऑक्सीजन सफिशिएंटली प्रोवाइड होगी. ठीक है, बात समझ में आई? नहीं, ओके आई विल स्टॉप हियर. मैं अब सोचना है इसके ऊपर. ठीक है, एनी क्वेश्चन? मैंने आपको इनके अब ये कमेंट्स किस बात पे थे, रियली एंड वाओ एंड यस मैम वाओ, इसी बात पे कि ऑक्सीजन जो है वो आपकी जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है दैट इज डिटरमिन्ड बाय द अमाउंट ऑफ द फ्लूइड, अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन व्हिच इज कंबाइनिंग विद द वाटर. ठीक है, और नॉर्मली सिर्फ 3 ml जो है वो 1 लीटर ब्लड के साथ कंबाइन करता है. ठीक है, बॉडी में आपके जब 5 लीटर कार्डियक आउटपुट है तो सिर्फ 15 ml ऑक्सीजन है. बॉडी को आपको चाहिए 250 ml ऑक्सीजन. 250 ml के लिए आपका कार्डियक आउटपुट 83 होना चाहिए. इसलिए फिर अल्लाह मियां ने आपको क्या दिया है, अक्ल. बताओ जल्दी से क्या चाहिए आपको? हाँ बच्चों बताओ. हाँ हाँ, सेफ्टी फैक्टर में बताओ, उस चीज का नाम बताओ मुझे. जैनब मुझे उसका नाम बताओ, शाबाश. दूसरी क्या चीज है जो कैरी कर रही है ऑक्सीजन को?
एक तो डिजोल्व फॉर्म में है ना, 1.5% डिजोल्व फॉर्म में है, तो दूसरी क्या चीज है? हीमोग्लोबिन। शाबाश, वेरी गुड, हीमोग्लोबिन। चलो, आप लोगों ने पहले लिखा हीमोग्लोबिन, मैं मान लेती हूँ, वेरी गुड, शाबाश। सी, इसने अगर हीमोग्लोबिन ना होती तो आपके हार्ट को कितना काम करना पड़ता। ठीक है, शाबाश, गुड गर्ल्स एंड गुड बॉयज, आई लाइक इट। ठीक है, अगर आपके पास हीमोग्लोबिन ना होती तो आपके हार्ट को 85 लीटर्स ब्लड पंप करना पड़ता। ठीक है, चलो, ओके, थैंक यू वेरी मच, सी यू टुमारो इंशाल्लाह।